If I'm audible, just Yes, let me sir. know. Okay. So slides are clear to all of you. Yes, sir. So we'll start with unit number 2. Previous unit we have seen block cipher design principles. Then we have seen algorithmic modes also. We have covered one of the most important block cipher, DES. And today, in continuation with block cipher itself, we'll see the modern block cipher. It's nothing but your AES or Advanced Encryption Standard. So first, we'll see the basic history. Then we'll see its working and other details. So you are having idea about days. You are having idea about the variants of days. There are certain flaws we have mentioned in earlier unit itself related to DES. So since DES was cracked or breaked, or there is an exhaustive key search attack which was demonstrated on this. That's why there is a need to develop a advanced encryption standard, or there is a need to develop some of the ciphers which will act as a replacement for DES, which will overcome the issues of loss specific to DES. So the replacement for DES was needed. The reason was DES was breaked. And another important thing is the key size was small in case of DES. That's why the cryptanalyzers or cryptanalytic attack was carried on DES, and DES got breaked. So you're having idea about the key length of DES. It's nothing but your 56 bit. That two round keys, they are of 48 bit each. So for carrying out brute force attack, for carrying out exhaustive research attack, attacker needs to try 2 to the power 56 possibilities. So in the era of high processing computing, it become easier for a cryptanalyzer or attackers to break this code, to break the DES. DES was break, and the reason was the key size. Key size is too much small. Later on, DES variants were developed. You are having idea about double DES and triple DES. So exhaustive key search attack was demonstrated on DES. One can use a triple DES, but major problem with triple DES is it's slow. It's especially very slow for small block sizes. If you are using PT block size small, in the sense it will consume more time. It's going to take more time to encrypt or decrypt this data. So triple DES is also not sufficient or secure as per our need or requirement. So considering all these aspects, considering the problems associated with DES, in year 1990, US government wanted to standardize algorithm which was universally accepted. तो 1990 में डे स्पेसिफिक फ्लॉस को जो है कंसिडर करते हुए यूएस गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है कि एक जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड या एक कोई एनक्रिप्शन एल्गोरिथम डेवलप किया जाए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो. So based on this idea, they called RFP, they called a request for proposal similar to DES. So against that RFP, many proposals were submitted, and after a long debate, one cipher with name like the Rigendale was accepted as a AES. So this Rigendale was developed by two scientists. One is John Damon and another one is Vincent Ridgman. So these two guys, they have proposed this cipher with name as Rigendale. They are from Belgium. जैसे मैंने बताया कि कोई अगर आरएफपी कॉल किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कॉल किया जाता है, तो
RFP में जो है बहुत सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। भैया आप एक RFP के तहत जो है एक साइफर, एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम प्रपोज कर रहे हैं, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। तो उन क्वालिटीज या फीचर्स के अगेंस्ट में बहुत सारे एकेडमिशियंस, बहुत सारी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या साइंटिस्ट, इन लोगों ने जो है अपने एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन साइफर्स को प्रपोज किया। उसमें से एक साइफर था रिजेंडेल नेम का, और इस साइफर को है डेवलप किया था जॉन डेमन और विंसेंट रिजमन ने। ये दोनों जो है बेल्जियम से थे। तो आउट ऑफ 15 प्रपोजल्स ओनली 5 आर शॉर्टलिस्टेड इन ईयर 1999। तो टोटल 15 प्रपोजल्स आए थे, उनको रिगरसली जो है स्क्रूटिनाइज किया गया। स्क्रूटिनाइज करने के बाद में 5 फाइनलिस्ट जो है शॉर्टलिस्ट किए गए 1999 में। तो आप देख रहे हैं प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ, ईयर 1990 से। तो 1990 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 1999 में जो है 5 फाइनलिस्ट जो है आपके शॉर्टलिस्ट हुए, and in October 2000 Rigendale was accepted as a final selection for AES। तो टोटल जो प्रोसेस में टाइम लगा एक स्पेसिफिक एज के डेवलपमेंट के लिए, RFP कॉल हुआ 1990 में। 5 फाइनलिस्ट जो है 1990 में जो है फाइनलाइज हुए, और उसके बाद उनको जो है प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करने के बाद, उनको प्रॉपरली जो है वेरीफाई करने के बाद, ईयर 2000 में जो आपका रिजेंडेल था उसी को एज ए फाइनल सिलेक्शन माना गया AES। या हम टर्म कर सकते हैं कि रिजेंडेल वाज रीनेम्ड एज ए एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड इन ईयर 2000। So first we'll see the shortlisting. So already I mentioned in August 1999, 5 finalists were selected for ACE. So the name of these 5 finalists are Mars from IBM. It's having complexity, fast, high security margin. These are the features of these 5 finalists. RC6 from USA. It's very simple, very fast. Low security margin is there in RC6. Then third finalist was Rigendale. इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इसी को जो है फर्दर रीनेम किया गया एज AES। So Rigendale was submitted by Vincent Rijman and John Damon. They are from Belgium. The features of Rigendale was it's a clean, fast, good security margin is there. Then fourth is Serpentine. It's from European research organization. The features are slow, clean, very high security margin. Then one more cipher was there among the 5 finalists. It's a two fish, Bluefish and two fish. So two fish was submitted by USA. Two fish was complex, very fast, high security margin. But from these 5 finalists, top 5 finalists, Rigendale was accepted as a AES. It got renamed as a AES. Now we'll see the design criteria set for AES। तो जैसे मैंने बताया आपको, जब भी RFP कॉल किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कॉल किया जाता है, तो उस RFP में क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन से क्राइटेरिया को आपका जो है प्रपोजल मीट करना चाहिए, या जो प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज या क्राइटेरियाज में जैसे इनिशियल जो क्राइटेरिया सेट किया गया था, इट्स नथिंग बट द सिक्योरिटी, दैट इज एफर्ट टू प्रैक्टिकली एनालाइज। देन कॉस्ट, कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है एक मेजर फैक्टर होता है, मतलब कंप्यूटेशनल कॉस्ट कोई भी नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा जो है लगना चाहिए। सिक्योरिटी जो है सभी चाहते हैं कि जो है आपका साइफर जो है स्टैंडर्ड लेवल या एडवांस जो है सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में जो है डेवलप हो। देन थर्ड पॉइंट इज एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है इनिशियल क्राइटेरिया थे, सिक्योरिटी, कॉस्ट एंड एल्गोरिथमिक एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, बट फाइनल क्राइटेरिया वाज जनरल सिक्योरिटी,
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज, एक तो सिक्योरिटी जो है स्टैंडर्ड लेवल का उसने प्रोवाइड करना चाहिए, इजीली जो है ब्रेक ना हो, ऐसा जो है फीचर रिस्पेक्टिव जो है एल्गोरिथम में होना चाहिए, तो उसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो सके। देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, कीइंग एंड अदर फैक्टर्स, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इन क्राइटेरियाज को जो है आरएफपी कॉल करते समय जो है कंसिडर किया गया था, और इन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पे जितने भी सबमिटेड प्रपोजल्स थे उनको इवेल्युएट किया गया। आफ्टर इवेल्युएशन 5 फाइनलिस्ट वर सेलेक्टेड, और उन फाइनलिस्ट में से एक स्पेसिफिक साइफर को एज एईएस एक्सेप्ट किया गया और उसे 2000 में रीनेम किया गया एज एईएस। एईएस के रिक्वायरमेंट्स हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी तक जितने भी हमने साइफर्स देखे हैं, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर नथिंग बट योर प्राइवेट की और सिमेट्रिक की साइफर्स। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग जो है ब्लॉक साइफर देख रहे हैं। जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा था डेस, वो भी ब्लॉक साइफर था, एईएस भी आपका जो है ब्लॉक साइफर है। प्राइवेट की या सिमेट्रिक की अगर हम बात कर रहे हैं, इन द सेंस आप ट्रेडिशनल की क्रिप्टो सिस्टम में डील कर रहे हैं, तो प्राइवेट की है या सिमेट्रिक की है, इसका मतलब क्या होता है कि सेंडर एंड पे जिस रिस्पेक्टिव पास की को, जिस रिस्पेक्टिव एनक्रिप्शन की को यूज कर रहे हैं, उसी एनक्रिप्शन की का यूटिलाइजेशन आप डेस्टिनेशन एंड पे करेंगे। तो सेंडर और डेस्टिनेशन एंड पे की कॉमन रहती है, इसलिए कंसेंट साइफर को हम प्राइवेट की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम टर्म करते हैं या सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम टर्म करते हैं। तो एस जो है आपका प्राइवेट की या सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है। इट्स स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन ट्रिपल डेज। तो हम लोगों ने देखे हैं डेज के जो है शॉर्ट कमिंग्स, डेज आपका जो है क्रैक हो गया था या ब्रेक हो गया था, तो उसका क्रिप्ट एनालिसिस जो है पॉसिबल था, तो उसको लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया, और इन्हीं जो है रीजंस की वजह से बेस का जो है सब्स्टिट्यूट एस जो है डेवलप हुआ, एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है डेवलप हुआ। तो एस के रिक्वायरमेंट्स में जैसे अगर हम देखते हैं, तो प्राइवेट की सिमेट्रिक का प्राइवेट की और सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है। इट्स स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन ट्रिपल डेज। एक्टिव लाइफ इसका जो है टर्म किया जाता है 20 to 30 years प्लस आर्काइवल यूज। तो आप मान चल सकते हैं अभी जो है हम 2020 में हैं, करीब करीब 20 साल जो है साइफर को आए हो गया, 2000 में जो है डेवलप हुआ था। आज की भी डेट में एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है यूज में है। मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो है इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज इट प्रोवाइड्स फुल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन डिटेल। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बोथ इन सी एंड जावा। मैक्सिमम जो है लैंग्वेजेस में इसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। कई सारे जो है लैंग्वेजेस में इससे रिलेटेड एपीआईज अवेलेबल हैं जिनका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, और उनका यूटिलाइजेशन करके रिस्पेक्टिव पैकेजेस को आपको इंपोर्ट करना रहेगा। कंसेंट पैकेजेस का यूटिलाइजेशन करके आपका एज से रिलेटेड फीचर्स, एज से रिलेटेड एपीआईज का यूज कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ भी कहीं आपको इंक्रिप्शन वगैरह की जरूरत होती है, तो वहाँ आप एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स ऑफ एज। देखिए ये जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। कई बार जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एज का रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन क्राइटेरिया क्या सेट किया गया था, क्या एज की शॉर्ट लिस्टिंग्स में कौन कौन से साइफर्स आए थे, इस पे भी जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये 5 जो है फाइनलिस्ट के नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मार्स फ्रॉम IBM, RC6 फ्रॉम USA, रिजेंडल फ्रॉम बेल्जियम, सर्पेंट फ्रॉम यूरोपियन रिसर्च, टूफिश फ्रॉम USA। तो इनको जो है हर पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ACE requirements, then features of ACE. So some of the features of ACE, they are nothing but symmetrical and parallel structure है. It's mainly suited for smart cards. Smart cards के लिए ACE जो है आज भी यूज में है. It gives implementer flexibility. It's a major important criteria set by
US government at the time of calling RFP. It's suitable for modern RISC processors. तो reduce instruction set वाले जो भी modern processors हैं उन सब के लिए ये सूट करता है, suitable है. It stand up well against cryptanalysis attack. And later on in 2000 itself, AES is published as a FIPS Pub 197. So FIPS stands for Federal Information Processing Standard. It's a universally accepted standard used worldwide for encrypting data, for securing the content. So I'm audible to all of you and slides are visible. Yes or no? हम ऑडिबल हैं या नहीं? यस सर. आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, फिर भी मैंने आज कुछ बेटर अरेंजमेंट किए हैं, उम्मीद करते हैं सब चीज़ें प्रॉपरली चलें. नाउ विल सी द बेसिक्स ऑफ एस. इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उनको आप प्रॉपरली नोट कर लेंगे. तो बेसिक्स जब भी किसी साइफर का पूछा जाता है तो उसमें पीटी ब्लॉक साइज कितना है, की लेंथ कितना है, तो उसके वेरिएंट्स कितने हैं, राउंड कीज क्या हैं, इन सब पॉइंट्स को आपको जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है, पीटी ब्लॉक साइज. यू आर हैविंग आइडिया, एस इज नथिंग बट यूर ब्लॉक साइफर. एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो ब्लॉक साइफर है, सिमेट्रिक साइफर के कैटेगरी में आता है या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का एग्जाम्पल है. तो इसका जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसका ब्लॉक साइज 128 बिट का है. ठीक है. प्रीवियस केस में जो आप डीएस देख रहे थे उसका ब्लॉक साइज कितना था, डेस का ब्लॉक साइज कितना था, एनीवन? अगर मैं ऑडिबल हूं तो आप लोगों से रिस्पांस चाहता हूं. जितने भी इवन रोल नंबर्स हैं वो मुझे रिस्पांस करेंगे. इवन रोल नंबर्स 1 to 50. Then 51 to remaining. यस सर. हाँ भाई, कौन है, अपना नाम बताएंगे और मुझे स्पेसिफाई करेंगे. डीएस के केस में जो प्रीवियस हमने साइफर देखा था उसका पीटी ब्लॉक कितना सर? सर 112. हाँ सर 112. 112. मैं रोल नंबर नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ जो प्रीवियस साइफर हम लोग देखा था ब्लॉक सर 64 पेगल. चलिए ठीक है. तो प्रीवियस केस में ब्लॉक साइज इसका हाफ था, यहाँ पे ब्लॉक साइज आपका 128 बिट, जिसे आप ध्यान में रख रहे हैं. की लेंथ जो है यहाँ देख रहे हैं, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्टेड पीटी ब्लॉक. की लेंथ सिलेक्टेड पीटी ब्लॉक से इंडिपेंडेंट है and that they are organized or the key length is organized in a variable sizes. तो वेरिएबल साइजेस में यहाँ पे हम देख रहे हैं हो सकता है 16, 24 या 32 बाइट का हो. तो 16 बाइट्स, 24 बाइट्स या 32 बाइट का रहेगा, या आप उसे काम कर सकते हैं कि इट इज ऑफ 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट. तो डिफरेंट साइजेस के जो है आपके वेरिएबल साइजेस के की लेंथ है और उस की लेंथ के बेसिस पे ही डेस का जो वेरिएंट है वो फाइनलाइज होता है. तो कोई भी अगर आप एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम देखेंगे, जैसे डेस के 3 वर्जन हमने देखे हैं, डेस 1, डेस 2, डेस 3. ठीक है. वो उसके की लेंथ के बेसिस पे जो है स्पेसिफाई होता है, फाइनलाइज होता है. हम लोगों ने जो है डबल डेस देखा, ट्रिपल डेस देखा. डबल डेस के केस में की लेंथ एक तरह से जो है डबल हो जाती है, ट्वाइस हम यूज करते हैं. ट्रिपल डेस के केस में जो है डेस का ही जो है थ्राइस यूटिलाइजेशन करते हैं. तो की लेंथ जो है इम्पोर्टेंट है. की लेंथ आपका जो है इंडिपेंडेंट है पीटी ब्लॉक साइज से, उसका कोई लेना देना नहीं. की लेंथ आपका वेरिएबल नेचर का है
इट में भी इट्स अ 16 बाइट और 24 बाइट और 32 बाइट्स, इसी को जो है यहाँ मेंशन किया गया है। 128 बिट का हो सकता है, 192 या 256 Excuse बिट। me, sir. प्लीज। So the voice is lagging a lot. ओके, ठीक है, देखते हैं। स्लाइड्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं? Yes, sir. चलिए चेक करते हैं कुछ और चेंजेस करके। व्हाट अबाउट अदर्स, वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट? बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? सर थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम्म? थोड़ा डिस्टर्बेंस है सर। कंटिन्यू कर रहे हैं। की लेंथ जो है आपका वेरिएबल नेचर का है। की लेंथ का पीटी ब्लॉक साइज से कोई रिलेशन नहीं है। ये की लेंथ आपका इंडिपेंडेंट है। इट्स ऑफ 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट। Next point is regional or ace. It consists of 10, 12 or 14 rounds. यहाँ आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है हो सकता है 10 राउंड्स के लिए इसे आप ऑपरेट करें, 12 राउंड्स के लिए आप ऑपरेट करें या 14 राउंड्स के लिए ऑपरेट करें। ओके, still there are students those who are connecting or giving the request to admit them. So each round is having मेजर 4 स्टेप्स। तो रीजेंडल में आपके जो है 10, 12 या 14 राउंड्स हो सकते हैं और हर राउंड में जो है आपको 4 स्टेप्स परफॉर्म करने रहते हैं। सो इट डज नॉट फॉलो द क्लासिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों ने एक मॉडर्न ब्लॉक साइफर से रिलेटेड जब डिटेल्स देखे थे तो हम लोगों ने क्रिस्टल स्कीम देखी थी। तो क्रिस्टल स्कीम के दौरान हमने मेंशन करते समय टर्म किया कि मैक्सिमम जो मॉडर्न आपके साइफर्स हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। एग्जांपल बताओ पे आपका ब्लोफिश है, टूफिश है, आइडिया है। आइडिया, ब्लोफिश, टूफिश से आपके सिलेबस से हटा दिया गया। पहले जो है मतलब पुराने जो स्टूडेंट थे वो आइडिया, ब्लोफिश, टूफिश वगैरह लर्न करते थे, बट नाउ इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट यहाँ अभी आप समझिए जो एस है, it does not follow the classical crystal cipher or classical crystal structure. Crystal scheme पे based नहीं है। It treats data in 4 groups और 4 bytes। तो डेटा को ये 4 ग्रुप या 4 बाइट्स में जो है ट्रीट करता है, कंसिडर करता है। It operates an entire block in every round। एक कंप्लीट जो आपका ब्लॉक है 128 बिट का, तो उस कंप्लीट ब्लॉक को जो है ऑपरेट करता है हर राउंड के अंदर में। ऐसा नहीं कि पार्शियली जो उसे ऑपरेट करेगा और कुछ रिजल्ट देगा। तो इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं, पीटी ब्लॉक साइज 128 बिट का है। की लेंथ आपका वेरिएबल नेचर का है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ सिलेक्टेड ब्लॉक। की लेंथ हो सकता है 128 बिट का हो, 192 बिट का हो या 256 बिट का हो। इसे आप बाइट्स में जो है कन्वर्ट करेंगे तो काम कर सकते हैं। 16 बाइट का हो सकता है, 24 बाइट का हो सकता है और 32 बाइट्स का हो सकता है। एस में 10 राउंड हो सकते हैं, 12 राउंड हो सकते हैं या 14 राउंड्स हो सकते हैं। हर राउंड में जो है 4 स्टेप्स हैं। ये क्लासिकल क्रिस्टल स्कीम पे बेस्ड नहीं है। इस पॉइंट को आप जो है ध्यान रखेंगे। इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर क्लासिकल क्रिस्टल साइफर और ऑन क्लासिकल क्रिस्टल स्कीम। It treats data in 4 groups of 4 bytes और entire जो block है आपका प्रोसेस होता है। So before proceeding further, just let me know whether I am audible clearly to all of you or not. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Now we'll see the AES variants. Advanced Encryption Standard के variants को हमें देखना है। तो AES के जो वेरिएंट्स हैं, AES 1 या AES 128। तो AES 128 क्या स्पेसिफाई कर रहा है? की लेंथ। अगर की लेंथ आपका 128 बिट यूज हो रहा है तो उसे ही जो है टर्म किया जाएगा AES 1।
की लेंथ 192 बिट का है तो उसे हम काम करेंगे AES2। की लेंथ आपका 256 बिट का है तो हो गया AES3। यहाँ पे आप देखिए की साइज जो है 128 है AES1, की साइज 192 है तो 2, की साइज 256 है तो AES3। अब यहाँ पे राउंड्स के डिटेल्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है 10 राउंड के लिए ऑपरेट हो सकता है, 12 के लिए हो सकता है, 14 के लिए हो सकता है। तो AES1 जिसमें 128 बिट की लेंथ है वो 10 राउंड्स के लिए ऑपरेट किया जाएगा। AES2 12 राउंड्स के लिए, AES3 जो है ये 14 राउंड्स के लिए ऑपरेट किया जाएगा। ये AES के वेरिएंट्स हैं, जैसे डेज के वेरिएंट्स हमने देखे थे, डेज 1, डेज 2, डेज 3। मतलब डेज 1 सिंपल डेज हुआ, डेज 2 हुआ डबल डेज, डेज 3 हुआ ट्रिपल डेज। ठीक है, तो ट्रिपल डेज में 3 बार जो डेज यूज करते हैं, डबल डेज में ट्वाइस हम डेज को यूज करते हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कीज में वेरिएशन है, नंबर ऑफ राउंड्स में वेरिएशन है। अगर 128 बिट का की यूज कर रहे हैं तो डेज 1 AES1 हम काम करेंगे, 192 बिट की यूज हो रहा है तो AES2 है, 256 बिट की यूज हो रहा है तो AES3 है। सो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ईच वर्जन यूजेस डिफरेंट की साइज, तो हर एक वर्जन जो है डिफरेंट की साइज एक फैक्ट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द राउंड कीज यूज्ड इन ईच वर्जन आर ऑलवेज 128 बिट। देखिए यहाँ आप ध्यान में रखिए, भले ही हर स्पेसिफिक वर्जन जो है अलग अलग की लेंथ यूज करता है, की साइजेस डिफरेंट हैं, बट आपके जो राउंड कीज हैं वो राउंड की जो है फिक्स हैं, दे आर ऑफ 128 बिट ईच। इस बात को कहीं हाईलाइट करके नोट कर लीजिए आपकी कॉपी में। इस वेरिएंट्स जो हैं इनका जो है, जैसे मास्टर की हम काम करते हैं, एस 128, 192, 256 है, तो ये डिफरेंट की साइजेस यूज करते हैं, डिफरेंट राउंड्स यहाँ पे हैं, बट इनका जो राउंड की बनेगा वो सभी वर्जन में 128 बिट का ही होगा। क्लियर है? इन AES नंबर ऑफ राउंड कीज जनरेटेड आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कई बार जो है इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, AES में नंबर ऑफ राउंड की जो जनरेट किए जाते हैं वो हरदम जो है एक ज्यादा जो है बनाए जाते हैं। तो जैसे मान चलिए कि हमें 10 राउंड्स के लिए की बनाने हैं, तो एक 10 राउंड के लिए की जो रहेंगे K0 से लेकर के K10 तक रहेंगे। इन द सेंस टोटल जो है आपकी कीज राउंड कीज बनते हैं 11। वही यहाँ मेंशन किया गया है, इन AES नंबर ऑफ की जनरेटेड आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड्स 10 है तो यहाँ पे +1, इन द सेंस 11 की आपका बनेगा, 11 राउंड की। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ राउंड्स 12 है तो +1, इन द सेंस ये जो है 13 जो है राउंड कीज बनेंगे। तो एक प्लस करना है यहाँ पे +1, इन द सेंस टोटल 15 राउंड कीज यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रख रहे हैं। AES के वर्जन्स को आप ध्यान में रख रहे हैं, 128 बिट है वर्जन 1 और AES1, AES2 192 बिट, AES3 256 बिट, नंबर ऑफ राउंड्स 10, 12, 14 रिस्पेक्टिवली। हर स्पेसिफिक वर्जन में जो भी आपका राउंड की रहेगा वो 128 बिट का ही होगा, और साथ में जो राउंड कीज आप प्रिपेयर करते हैं वो एक ज्यादा बनते हैं। तो K0 से स्टार्ट करेंगे और जैसे 10 राउंड्स के लिए K0 to K10, 12 राउंड्स के लिए K0 to K12, 14 राउंड्स के लिए है तो K0 से लेकर के K14 तक, इन द सेंस 15 जो है राउंड कीज आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। इन पॉइंट्स को आप जो है प्रॉपरली नोट करके रख लीजिएगा, इस पे भी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दिव्या ठाकुर अभी आ रही हैं आधे घंटे बाद। चलिए, AES स्ट्रक्चर, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, साइफर की जो की है वो हो सकता है 128 बिट, 192 या 256 बिट का हो। तो इस की को दिया जाता है की एक्सपेंशन के लिए, और की एक्सपेंशन के बाद में आपके जो है राउंड कीज प्रिपेयर होते हैं, तो दे आर ऑफ 128 बिट। कोई भी वर्जन हो आपका, AES1 हो, 2 हो, 3 हो, हर पर्टिकुलर वर्जन में, हर वेरिएंट में ये जो राउंड की बनेगा
वो 128 बिट का ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये जो मास्टर की आप सिलेक्ट करेंगे वर्जन 1 में, मतलब AES 1 है, इसको A1 शॉर्ट में मैं राइट कर रहा हूँ, A2 जो है आपका AES 2, A3 जो है आपका AES 3 है। तो AES 1 में 128 बिट आप सिलेक्ट करेंगे, AES 2 में 192, AES 3 में 256 बिट। इसे आप देंगे की एक्सपेंशन के लिए, कि एक्सपेंशन होने के बाद में आपका राउंड की जनरेट होगा। तो राउंड की जो है आप ध्यान में रखेंगे, हर स्पेसिफिक वेरिएंट के लिए आइदर एस 1, 2 और 3, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, 128 बिट का ही होगा। ये जो है पीटी ब्लॉक साइज है आपका। इस रिस्पेक्टिव पीटी ब्लॉक साइज को आप प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं। प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपका K0 मिक्स होगा। यहाँ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ राउंड्स हमारे जो है 10, 12 और 14 है, बट हम एक की ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं, K0 आप काम करें या पर्टिकुलरली लास्ट वाला जो है कि आप कंसिडर करें, तो एक की आपका ज्यादा जो है प्रिपेयर होता है। 10 राउंड है, 11 राउंड की बनाएंगे, 12 राउंड है तो 13 राउंड कीज बनते हैं, 14 राउंड है तो उस केस में 15 राउंड कीज आप प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें जो है, जो एक्स्ट्रा आपका की प्रिपेयर हो रहा है वो रिस्पेक्टिव की प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे K0 है, ये प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज हुआ। इसके बाद मान चलते हैं आपका AES वर्जन 1 है, तो ये AES वर्जन 1 जो है 10 राउंड्स के लिए जो प्रोसेस किया जाएगा, 10 आपके राउंड की जो है प्रोसेस होंगे, और आपको यहाँ पे फाइनली जो है साइफर टेक्स्ट जो है वो रिजल्ट करके देगा। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा राउंड की हम बना रहे हैं, वो एक्स्ट्रा राउंड की आपका प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. अब यहाँ एन्क्रिप्शन प्रोसेस देखेंगे। फिर कुछ स्टूडेंट हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन है मालूम नहीं, 51 में नाम वगैरह भी नहीं बताए हैं। सो एन्क्रिप्शन प्रोसेस में आप यहाँ पे देखिए, प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट के साथ में जो है साइफर की आप मिक्स कर रहे हैं, तो ये आपका ऐड राउंड की हो रहा है। ऐड राउंड की जो है प्लेन टेक्स्ट के साथ में, जैसे मैंने यहाँ प्रीवियस केस में दिखाया, प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। इस प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में आपका जो है K0 जो कि 128 बिट है, जितने भी आपके राउंड कीज रहेंगे वो सभी जो है 128 बिट के ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि राउंड की आपका जो है वर्जन के अकॉर्डिंग चेंज हो। यहाँ साइफर की डेफिनेट है चेंज होगा, साइफर की चेंज होगा इन द सेंस, हो सकता है 128 बिट 192 या 256 बिट का रहेगा। प्लेन टेक्स्ट जो है आपका 128 का रहेगा। ये जो है चेंज होंगे 192, 256 या 128, बट ये जो आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा, राउंड की जो प्रोड्यूस करके देगा, ये राउंड कीज आपके जो है फिक्स रहेंगे, 128 बिट के ही होंगे। ठीक है, तो 128 बिट का जो आपका राउंड की प्रिपेयर होता है, तो उसमें से फर्स्ट राउंड की आप जो है ऐड राउंड की पर्पस के लिए, या प्रीवियसली जैसे मैंने आपको बताया प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ऐड राउंड की होने के बाद आपको जो है 4 स्टेजेस के थ्रू इन स्पेसिफिक रिजल्ट्स को जो है प्रोसेस करना है। तो 4 स्टेजेस हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, बाइट सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम एंड ऐड राउंड की। ऐड राउंड की इन द सेंस रिस्पेक्टिव राउंड के लिए जो कंसेंट की आप यूज कर रहे हैं 128 बिट का, उसे जो है की को आप ऐड करेंगे। A0 जो है इनिशियल प्रोसेसिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, और रिस्पेक्टिव राउंड जो है उसमें कंसर्न राउंड की को आप ऐड करते हैं। राउंड की जितने भी हैं इंक्लूडिंग आपका K0 सब 128 बिट के ही रहेंगे। तो इस तरह के जो है हम 10 राउंड्स में इस रिस्पेक्टिव डेटा को स्क्रैम्बल करेंगे, 10 राउंड्स के थ्रू प्रोसेस करेंगे और फाइनली जो है सीटी जनरेट करेंगे। अब इनके डिटेल्स को जो है यहाँ देखते हैं, ब्रॉड लेवल स्टेप्स क्या है उसको हम देख रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक राउंड में पहले आपका जो है बाइट सब्स्टिट्यूशन होगा। फर्स्ट स्टेप इज बाइट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड स्टेप इज शिफ्ट रोज, थर्ड स्टेप इज मिक्स कॉलम्स,
फोर्थ स्टेप इज राउंड की एडिशन। तो राउंड की एडिशन में सिंपली जो है एक्सवा प्रोसेस होता है, एक्सवा प्रोसेस करके राउंड की को मिक्स किया जाता है। सो दीज आर द ब्रॉड लेवल स्टेप्स ऑफ एईएस। श्वेता बुंदेला, ये आउटसाइडर हैं, ये अपनी क्लास के हैं, अभी ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10:40 हो गया है। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स, ब्रॉड लेवल स्टेप्स। इन स्टेप्स को आप जो है ध्यान रखेंगे। बाइट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड स्टेप इज शिफ्ट रो, थर्ड इज मिक्स कॉलम, फोर्थ इज राउंड की एडिशन। तो इन स्टेप्स को हम रिस्पेक्टिव वेरिएंट या वर्जन के अकॉर्डिंग रिपीट करते हैं। इन चारों स्टेप्स को हो सकता है 10 बार इसे रिपीट करें, 10 राउंड्स के लिए, 12 राउंड्स के लिए या 14 राउंड्स के लिए। AES 1 है तो 10 राउंड्स के लिए, AES 2 है तो उसके इसमें 12 राउंड्स, AES 3 है तो 14 राउंड्स। ओके, ये ब्रॉड लेवल स्टेप्स हैं। ब्रॉड लेवल स्टेप्स को आप नोट कर लेंगे, कई बार पूछा जाता है स्पेसिफाई द ब्रॉड लेवल स्टेप्स ऑफ एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। आपको पहले मैं बता दे रहा हूँ, प्रोसीड करने के पहले ही, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। AES के ऊपर आप देखेंगे तो एक करीब 500 पेजेस का बुक मिल जाएगा। तो एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का एक तरह से जिस्ट या समरी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे आप अच्छे से समझ करके, उस कंसेप्ट को समझ करके एग्जाम में राइट कर सकें। साथ साथ एंड में एनिमेटेड वे में कैसे वर्क करता है उसका मैं एक आपको एनिमेशन भी शो करूंगा। बट ये जो ब्रॉड लेवल स्टेप्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। पहला जो स्टेप है बाइट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड स्टेप शिफ्ट रोज, थर्ड स्टेप मिक्स कॉलम, फोर्थ स्टेप राउंड की एडिशन। तो ये स्टेप्स जो है हो सकता है 10 राउंड्स के लिए जो है रिपीट हो, 12 टाइम्स जो है रिपीट हो या 14 टाइम्स रिपीट हो। ये टोटली डिपेंड करता है AES का कौन सा वेरिएंट आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम देखते हैं पहला जो आपका स्टेप है, इनिशियल जो है स्टेप्स वगैरह देखेंगे, बट उसके पहले यहाँ पे देख रहे हैं इनिशियल PT या की ब्लॉक साइज क्या होता है। यहाँ आपको जो है 4x4 का मैट्रिक्स दिख रहा है। इस 4x4 मैट्रिक्स में जो है आपके पास में टोटल 16 सेल्स हैं। हर एक सेल को आप जो है टर्म करेंगे, एक स्पेसिफिक बाइट इसमें अवेलेबल है। एक स्पेसिफिक बाइट अवेलेबल है इन द सेंस यहाँ पे आपके 8 बिट्स अवेलेबल हैं। तो इसे जो है जनरली जो है टर्म किया जाता है 8 बिट बाइट जो है टर्म करते हैं, या एक सेल में जो स्पेसिफिक डेटा है उसे जो है वर्ड टर्म करते हैं। ठीक है, फिर रिपीट कर रहे हैं। जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इनिशियल PT या की ब्लॉक, तो की ब्लॉक की बात अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो ये राउंड की ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 8 बिट बाइट ऑक्टेट्स हैं, जो कि टोटल जो रहेगा ये आपका 128 बिट का होगा। क्लियर है? तो इनिशियल PT इन द सेंस PT ब्लॉक आपका 128 बिट का है। की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ राउंड की का कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि राउंड की AES 1, AES 2, AES 3 तीनों के लिए फिक्स है, 128 बिट का ही है। तो ये जो आपका 4x4 मैट्रिक्स है, इसके हर सेल में 8 बिट बाइट्स आपके हैं, एक सिंगल वर्ड आपका अवेलेबल है। इनको टोटली अगर हम देखते हैं तो ये जो है 128 बिट का होता है। क्लियर? तो इसे जो है कई बार ये पूरा जो आपका 8 बिट बाइट ऑक्टेट या ये स्पेसिफिक आपका जो मैट्रिक्स है इसे स्टेट भी टर्म किया जाता है। कंप्लीट इसको जो है स्टेट टर्म करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट्स और बाकी सब चीजें बात आएगी, तो इसे स्टेट भी टर्म किया जाता है। बट सिंगल सेल में 8 बिट्स हैं, एक बाइट है, या उसे जो ऑक्टेट टर्म करते हैं या वर्ड जो है बोला जाएगा। तो कॉलम्स और सेल के फॉर्मेट में ये ऑर्गेनाइज है। तो अब इस रिस्पेक्टिव बाइट के ऊपर में पहला स्टेप हमें जो है करना है वो है बाइट सब्स्टिट्यूशन। आप ब्रॉड लेवल स्टेप्स देखिए। ब्रॉड लेवल स्टेप्स में मैंने आपको बताया था, पहला स्टेप बाइट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड स्टेप शिफ्ट रोज, थर्ड स्टेप मिक्स कॉलम, फोर्थ स्टेप राउंड की एडिशन। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं 10 बार, 12 बार या 14 बार आप रिपीट करेंगे। ये ब्रॉड लेवल स्टेप्स हैं। ब्रॉड लेवल स्टेप्स स्टार्ट करने के पहले हमने आपको बताया कि आपका PT ब्लॉक जो है या राउंड की ब्लॉक जो है कैसे दिखता है। तो इसमें
हर स्पेसिफिक सेल में 8 बिट बाइट ऑक्टेट्स या एक वर्ड जो है अवेलेबल है। इसको कंप्लीटली कई बार बोला जाता है कि स्टेट है। तो पहला स्टेप हम यहाँ देख रहे हैं। पहले स्टेप में बाइट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो बाइट सब्स्टिट्यूशन में अब यहाँ हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो है पीटी ब्लॉक है। इस रिस्पेक्टिव पीटी ब्लॉक में टोटल कितने हैं 128 बिट। ठीक, 128 बिट है इन द सेंस हर सेल में आपके 8 बिट बाइट ऑक्टेट्स हैं, जो कि आपका होता है 128 बिट। पीटी ब्लॉक साइज हमारा 128 बिट है। इस पीटी ब्लॉक को हम पास कर रहे हैं एस बॉक्स को। एस बॉक्स आप जानते हैं इट्स नथिंग बट योर सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस जो है सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। सब्स्टिट्यूशन साइफर्स हमने देखे हुए हैं, इसे आप रिलेट कर सकते हैं डेस से। So S-box technique is used similar to your data encryption standard. Input text passes through S-box and corresponding text is generated. यहाँ जो आपका PT है, PT को आप S-box के थ्रू पास कर रहे हैं। तो PT इन द सेंस कौन सा PT रहेगा, जिसमें आप K0 मिक्स करके जो है दे रहे हैं। यहाँ देखिए इसे 128 बिट PT यहाँ पे है। इस 128 बिट PT को आप प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं। प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान K0 आप मिक्स करते हैं, जो कि 128 बिट का ही होता है। तो इसका जो आउटकम है उसे आप राउंड 1 को दे रहे हैं। तो राउंड 1 में जो है 4 स्टेप आपके हैं। तो पहला स्टेप है बाइट सब्स्टिट्यूशन। बाइट सब्स्टिट्यूशन को ही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो बाइट सब्स्टिट्यूशन के केस में क्या हो रहा है, एस बॉक्स टेक्निक जो है यूज होती है, जो कि डेस के जैसी है। इनपुट टेक्स्ट जो भी है, जो कि प्री राउंड ट्रांसफॉर्म के बाद हमारे पास आ रहा है, उस 128 बिट को एस बॉक्स के थ्रू पास कर रहे हैं। एस बॉक्स जो है इस पे सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 128 बिट रिजल्ट करता है। ओके, तो अभी यहाँ की राउंड की नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ जो है सब्स्टिट्यूशन किया गया है। सेकंड स्टेप है शिफ्ट रोज। ब्रॉड लेवल स्टेप्स जो आप मेंशन किए हैं उसमें देखेंगे, पहला स्टेप हमारा है बाइट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड स्टेप है शिफ्ट रोज। तो शिफ्ट रोज के केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ आपको समझाने के लिए ABCD राइट किया गया है, जिसको आप कंसिडर करेंगे हर सेल में आपके 8 बिट्स हैं या एक बाइट है या एक वर्ड है। तो आपको समझाने के लिए ABCD यहाँ हमने राइट कर दिया गया है। अब ये जो आपका ब्लॉक है जो कि 128 बिट का है, इसे आप शिफ्ट रोज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे कि पहला रो आपको अनटच रखना है। तो पहला रो जो है आउटपुट में देखेंगे एज इट इज आपको मिलेगा ABCD। फिर रिमेनिंग जो आपके 3 रोज हैं, अदर 3 रोज, दे आर शिफ्टेड बाय वेरिएबल अमाउंट एज शोन बिलो। ये 3 रोज को जो है वेरिएबल अमाउंट से जो है शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं H जो है इधर आ गया, एक वेरिएबल अमाउंट का शिफ्टिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। आपको सिंपलिसिटी के लिए आप समझ सकें इसलिए जो है इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर सेकंड पहला रो जो है अनटच रहेगा आउटपुट में। सेकंड रो से लेकर के सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो, इसके ऊपर में शिफ्टिंग होगी वेरिएबल अमाउंट से। तो H जो है पहला आ गया। फिर यहाँ पे आप देखिए K और L इधर पहले आ गए, फिर IJ राइट कर दिया गया। देन NOP जो है इधर आ गए और M जो है एंड में चला गया। तो वेरिएबल अमाउंट का आपका शिफ्टिंग होता है और शिफ्टिंग के बाद में जो है इसे आप थर्ड स्टेज के लिए दे देते हैं। तो पहला हमने स्टेप देखा बाइट सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट रोज। थर्ड इज मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम के केस में जैसे यहाँ टर्म किया गया है, इन दिस स्टेप 4 बिट्स ऑफ एवरी कॉलम इज मिक्स्ड इन लीनियर फैशन। तो यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाता है, गैलोइस फील्ड का यहाँ पे यूज किया जाता है, GF8 वगैरह का यूज किया जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके आपके 4 बिट्स जो हैं हर कॉलम के लीनियरली मिक्स किए जाते हैं। तो इसे पिक्चोरियल वे में डिपिक्ट करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आगे आने वाली स्लाइड्स में जो हम एनिमेशन दिखाएंगे, तो उस एनिमेशन को देख करके आपको आइडिया आ जाएगी। बट यहाँ आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि 4 बिट हर कॉलम के लीनियरली जो है मिक्स किए जाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिपिक्ट। इवन आपका जो रेफरेंस बुक है स्नियर
ब्रूशनियर का तो अप्लाइड क्रिप्टोग्राफी बाय ब्रूशनियर, तो वो उन्होंने भी जो है सिंपली मेंशन किया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिपिक्ट और पिक्चराइज इन दिस टेक्स्ट बुक। आप इतना समझ लीजिए कि हर 4 बिट्स कॉलम के जो है 4 बिट्स ऑफ एवरी कॉलम दे आर मिक्सड इन अ लीनियर फैशन। सो ईच कॉलम इज प्रोसेस सेपरेटली। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कैसे होता है उसको मैं एनिमेशन के थ्रू आपको शो कर रहा हूँ। ईच बाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ वैल्यू डिपिक्टेड ऑन ऑल 4 बाइट्स इन द कॉलम। तो मिक्स कॉलम के केस में हर कॉलम को जो है सेपरेटली प्रोसेस किया जाता है, हर कॉलम के 4 बिट्स को लीनियरली जो है मिक्स किया जाता है, और इसका जो रेस्पेक्टिव आउटकम रहेगा उस कंसेंट आउटकम में आप राउंड की एक तरह से ऐड करेंगे। तो ये आपका थर्ड स्टेप का इनपुट हुआ। ये थर्ड स्टेप के बाद जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है, थर्ड स्टेप आउटपुट, तो ये आपका प्रोसेस्ड प्लेन टेक्स्ट हुआ। यहाँ पे आपका जो है की है, इन द सेंस इट्स नथिंग बट योर राउंड की। तो प्रोसेस्ड आउटपुट थर्ड स्टेप का जो भी है उसको आप ले रहे हैं, जिसे एज ए पीटी आप ट्रीट कर रहे हैं, इसके साथ राउंड की को आप ऐड कर रहे हैं या मिक्स कर रहे हैं। ये पीटी प्लस ये राउंड की, इसके ऊपर आप एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपका आउटपुट जनरेट होगा। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं, इन चारों स्टेप्स को आप 10 राउंड्स के लिए ऑपरेट करते हैं, 10 टाइम ऑपरेट करते हैं, 12 टाइम ऑपरेट करते हैं, या 14 टाइम ऑपरेट करते हैं। So each key byte is XORed with the corresponding input byte and result becomes CT for this round. ये जो रिजल्ट है या जो आउटपुट है इस स्पेसिफिक राउंड का इंटरमीडिएट CT है। एस के केस में नॉर्मल आपका AES है, तो वहाँ एस पमनानी साहब अभी ज्वाइन कर रहे हैं 10:52 पे। ओके, तो आउटपुट जो है, ये आपका जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रहा है ये स्पेसिफिक राउंड का आउटपुट है, ना कि फाइनल सीटी है। इंटरमीडिएट सीटी इसे आप काम कर सकते हैं। एस में 10 टाइम्स आपको चारों स्टेप्स को रिपीट करना है, एस 2 के केस में 12 टाइम्स, एस 3 के केस में 14 टाइम्स। ये चारों ब्रॉड लेवल स्टेप्स जो हमने देखे हैं ये हमें रिपीट करने रहते हैं। तो बाइट सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, राउंड की एडिशन, ये 4 स्टेप्स आप रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के बाद फाइनली जो है रिजल्ट या सीटी को शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? अब यहाँ ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एग्जाम में इसे राइट करना या ड्रॉ करना। यहाँ समझ लीजिए, पहले जो है आप यहाँ देखिए स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स के ऊपर में, स्टेट्स इन द सेंस जो ब्लॉक साइजेस हैं, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका जो है जो ब्लॉक है उसको ऐसा हॉरिजॉन्टली डिपिक्ट किया गया है। ये जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स इन द सेंस आपका इस तरह का जो मैंने ब्लॉक ड्रॉ किया है वही आपका है 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी जो है पहला जो 4 है यहाँ पे 1 2 3 4, फिर रिमेनिंग जो है सेकंड थर्ड फोर्थ, ये और इस तरह के, ये जो है स्टेट्स हैं। इन स्टेट्स के ऊपर जो है पहला ऑपरेशन आप क्या करें, बाइट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट बाइट्स। सब्स्टिट्यूट बाइट के बाद में फिर आपको जो है स्टेट्स मिल गए, वही 128 बिट का जो है ब्लॉक आपको मिल गया यहाँ पे। अब इसके ऊपर आप जो है शिफ्ट रोज करते हैं, तो रोज को शिफ्ट करना है इन द सेंस पहले रो को अनटच रखना है, रिमेनिंग जो आपके 3 रोज हैं उनके ऊपर में आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये होने के बाद फिर से आपको जो है स्टेट्स मिल गए, इंटरमीडिएट स्टेट्स। अब इन इंटरमीडिएट स्टेट्स के ऊपर में शिफ्ट रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में आप कॉलम मिक्सिंग करते हैं। कॉलम मिक्सिंग कर रहे हैं इन द सेंस हर स्पेसिफिक कॉलम को इंडिविजुअली आप लीनियरली मिक्स करते हैं उसके 4 बिट्स को। तो ये होने के बाद फिर आपको जो इंटरमीडिएट स्टेट मिल रहा है। अब इस इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर में आप एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इन द सेंस रिस्पेक्टिव राउंड की को आप यहाँ पे ऐड करते हैं, और फाइनली जो है इंटरमीडिएट सीटी आपका मिलता है। तो ये एक राउंड का डिटेल है। ऐसे ही आप टोटल 10,
12 या 14 राउंड्स के लिए एस को जो है ऑपरेट करते हैं और फाइनली जो है CTR प्रोड्यूस करते हैं। सो AES डिक्रिप्शन इज नॉट आइडेंटिकल टू एन्क्रिप्शन। डिक्रिप्शन प्रोसेस एकदम आइडेंटिकल नहीं है, उसे जो है रिवर्स ऑर्डर में से करना रिवर्स करना है। जैसे हम स्वैप बाइट सब्स्टिट्यूशन और शिफ्ट के लिए जो स्वैप कर रहे हैं नेक्स्ट हाँ आप विजुअल नहीं है, स्लाइड्स विजिबल नहीं है। हेलो स्लाइड्स विजुअल है, आपकी आवाज विजुअल नहीं है। यार आवाज ऑडिबल होगी। ऐसा ऑडिबल नहीं है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स whether I'm audible or not? सर remaining- बैकग्राउंड में कुछ Yes, sir, आवाज there's आ a रहा lot है। of disturbance. आप लोग अपने जो है जितने भी माइक्स हैं थोड़ा सा ऑफ करके रखिए। हमारे एंड से तो सब बंद करके हमें रखा हुआ है, सिर्फ एक का माइक्रोफोन जो है स्टार्ट है। डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्या दिक्कत हो रही? डोमेश्वर राम साहब आप माइक बंद कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं आप अपने माइक को फिलहाल जो है ऑफ कर दें। कुछ क्लैरिटी आई वॉइस में? वॉइस क्लियर हुआ? जब बोलना रहेगा तो आप अपना टेम्पररी माइक ऑन रिस्पॉन्स कीजिए। यस सर, थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि AES डिक्रिप्शन प्रोसेस जो है एनक्रिप्शन का रिवर्स प्रोसेस है, एनक्रिप्शन का जो है इनवर्स प्रोसेस है। और एनक्रिप्शन का इनवर्स प्रोसेस करना इन द सेंस कीज को रिवर्स ऑर्डर में आपको यूज करने हैं। जो स्टेप्स आपका फॉलो किए हैं उन स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में आपको यूज करना है। इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स अगर इसके देखते हैं, ये 8 बिट सीपीयू में इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है। बाइट सब्स्टिट्यूशन जो है 256 बाइट के 256 एंट्रीज के टेबल का यूज करके आप बाइट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। शिफ्ट रोज इज सिंपल बाय शिफ्टिंग रोज। मिक्स कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करता है। राउंड कीज जो है सिंपल एक्सओर ऑपरेशन पे वर्क होती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स के तौर पे देखें तो इजियर वे लो पावर सीपीयू का यूज करके, लो पावर प्रोसेसर का यूज करके एस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसीलिए जो है टर्म किया जाता है कि एस जो है स्मार्ट कार्ड्स के लिए सुटेबल है, मॉडर्न रिस्क प्रोसेसर्स जो है उनके लिए सूट करता है। मॉडर्न रिस्क प्रोसेसर्स पे से जो इजियर वे में इम्प्लीमेंट किया गया है और मैक्सिमम आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इसको जो सपोर्ट करते हैं। सभी APIs भी अवेलेबल हैं। अब एक हम जो है एनिमेशन शो कर रहे हैं, एनिमेशन प्ले कर रहे हैं। आप गौर से इसे देखिए, स्टेप्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। इसे मैं एनिमेशन को जो अप कर रहा हूँ। सिंपल सा एनिमेशन है, मैं आपको शो कर रहा हूँ। विनर ऑफ ये सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए प्लेन टेक्स्ट जो है आपका और साइफर टेक्स्ट, साइफर की इन द सेंस आपका की डिटेल्स जो है दे रहे हैं। ये स्टेट्स हैं, ये साइफर की है। अब इन स्टेट्स और कीज का यूटिलाइजेशन करके आपको प्रोसेसिंग करनी है। तो बाइट्स जो है यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। अब ये स्टेट को जो है हम यहाँ देख रहे हैं एनक्रिप्शन प्रोसेस ए और एक की शेड्यूलिंग जो बी में देख रहे हैं। तो एनक्रिप्शन प्रोसेस पहले देखते हैं।
एन्क्रिप्शन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, कैसे जो 4 राउंड्स हैं उनके थ्रू जो है आपका डेटा प्रोसेस होता है, तो उसे आप देखिए। राउंड कीज को आप जो है प्रोसेस करते हैं 10 राउंड्स के थ्रू, 12 राउंड्स के थ्रू या 14 राउंड्स के थ्रू। 4 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हमने देखा है। तो पहला है आपका बाइट सब्स्टिट्यूशन। बाइट सब्स्टिट्यूशन के केस में जो है लुकअप टेबल है, इस लुकअप टेबल का यूटिलाइजेशन करके हर स्पेसिफिक जो है बाइट को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। एसबॉक्स जो है इस लुकअप टेबल को यूज करेगा और इस लुकअप टेबल का यूटिलाइजेशन करके बाइट सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कैरी करेगा। शिफ्ट रोज में आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, पहला रो जो है उसे अनटच रखना है, रिमेनिंग 3 रोज के ऊपर में जो है प्रॉपर शिफ्टिंग करना, उनको जो है रोटेट करना है। कॉलम में आपको हर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ये फील्ड का यूज करना है। हर कॉलम को इंडिविजुअल जो है आपको प्रोसेस करके मिक्स कॉलम स्टेप को जो है इम्प्लीमेंट करना रहेगा। तो ये मिक्स कॉलम से रिलेटेड डिटेल्स हैं जो कि एनिमेशन के थ्रू आपको विजुअलाइज हुए। देन राउंड कीज को ऐड करना है, तो राउंड की ऐड करना है जैसे सिंपल आपको एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। राउंड्स के लिए इस तरह से जो है राउंड कीज को जो है अप्लाई राउंड्स के बाद में ऐड किया जाएगा और हर राउंड में राउंड कीज को ऐड किया जाएगा और फाइनली जो है आपका सीटी जो है डाउन करके डेस्टिनेशन एंड पास करेंगे। की शेड्यूलिंग कैसे होती है उसको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो की शेड्यूलिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि शेड्यूलिंग करना है जैसे हमें कीज को हर स्पेसिफिक राउंड के लिए फिक्स जो है कीज को प्रिपेयर करना है। तो कीज के ऊपर में इसी तरह से जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसको एक बार आप जो देख लीजिए। इस स्लाइड्स को मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसे और अच्छे ढंग से आपका देख लेंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में जो है पिक्चराइज करने के लिए, आपके आंसर बुक में राइट करने के लिए जो प्रीवियस मैंने स्टेप्स आपको दिखाए हैं, जो प्रीवियस स्टेप्स मेंशन किए हैं स्लाइड्स में, उन स्टेप्स को आपको प्रॉपर मैनर में जो है एक बार बना करके देख लेना है, जिससे आप इजियर वे में एग्जाम में इन चीज़ों को राइट कर सकें। इसके एनिमेटर्स जो है कई सारे आपको मिल जाएंगे। इवन आपका सिमुलेटर्स जो है, कभी नेटवर्क सिक्योरिटी लैब वगैरह में जाएं तो नेटवर्क सिक्योरिटी लैब में भी सिमुलेटर अवेलेबल है। इवन यू विल गेट सिमुलेटर इन नेटसिम आल्सो। तो इजियर वे में वहाँ इसको जो सिमुलेट करके देख सकते हैं। यू विल गेट